Hello everyone, welcome to the Science of myself Shreyas Patel, and today we are going to discuss about firearms, parts of firearms, classification of firearms and different types of firearms. So first we will see what is firearm. तो हम definition देखते हैं according to Indian Arms Act 1959. तो Indian Arms Act 1959 ये कहता है कि firearm means of any description, design or adapted to discharge a projectile. Any device which is descripted, designed, or adapted to discharge a projectile or projectiles of any kind by the action of any explosive or other form of energy and includes artillery, hand grenades, reload pistols, or weapons of any kind designed or adapted for the discharge of any noxious liquid, gas, or other such things. Then accessories for any such firearms designed or adapted to diminish the noise or a flash caused by the firing, such as silencer, and the third is ports and machinery of manufacturing firearms and thereof cartridge, platform and appliances for mounting, transporting and servicing artillery. तो इंडियन आर्म्स एक्ट ये कहता है कि firearms mean any device which is descripted, designed or adapted to discharge a projectile or projectiles of any kind by the action of any explosive or other forms of energy. Thus, a firearm is a device by which a projectile or projectiles can be hurled with the great force. तो क्या है? Thus, a firearm is a device by which a projectile or projectiles can be hurled with great force. अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ फायरआर्म्स. तो यहाँ पे दो पिक्चर्स दिए गए हैं. फर्स्ट पिक्चर में है राइफल एंड सेकंड में है सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल. तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स रिमेन सेम. कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो चेंज होंगे, तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक फायरआर्म. तो पहले देखते हैं ऑल फायर आर्म्स हैव थ्री बेसिक ग्रुप्स ऑफ पार्ट. फर्स्ट वन इज एक्शन, सेकंड वन इज स्टॉक एंड द थर्ड वन इज द बेरल्स. कोई भी फायर आर्म होगा उसके तीन बेसिक पार्ट्स होंगे. फर्स्ट वन इज एक्शन, सेकंड इज द स्टॉक एंड द थर्ड वन इज द बेरल. तो एक्शन क्या है? इट इज द गर्ड्स ऑफ द गन एंड इट इंक्लूड्स ऑल द मूविंग पार्ट्स सच एज लोड, फायर एंड इजेक्ट द फायरआर्म सेल्स और कार्ट्रिज. एक्शन क्या है कि girds of the firearm and it includes all the moving parts that can load, fire and eject the firearm cells or cartridges. फिर है stock. तो stock is also known as a handle and it is composed of two pieces, the butt and the forend. And the third one is the barrel of the gun. A gun barrel is a long metal tube and bored out to provide an exit path for the discharging projectile. अब क्या होगा कि जब हम ट्रिगर पुल करेंगे तो उस फायरिंग पिन स्ट्राइक होगी प्राइमर ऑफ द प्रोजेक्टाइल पे और प्रोजेक्टाइल फॉरवर्ड मोशन करेगा. तो जो बैरल ऑफ द फायरआर्म है वो एक एग्जिट पाथ प्रोवाइड करेगी टू डिस्चार्ज द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द फायरआर्म. Once the projectile is fired, it's forced down the barrel and out of the muzzle by expanding gas forces. And in a rifle or a handgun, the bullet travels through the barrel. चाहे राइफल हो या फिर हैंडगन हो सच एज पिस्तौल, उसमें भी बुलेट ट्रेवल्स थ्रू द बैरल. एंड इन शॉर्ट गन्स द शॉट और द स्लग इज शॉट थ्रू द बैरल. अब राइफल और हैंडगन में क्या होगा कि बुलेट ट्रेवल करेगी, लेकिन शॉर्ट गन में क्या होता है? बुलेट्स की जगह पे शॉट्स और स्लग होते हैं, तो वो ट्रैवल करेंगे थ्रू द बैरल. नाउ लेट्स सी द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द फायरआर्म. तो पहला है बोर. बोर इन द इनसाइड ऑफ द गन बैरल. बोर क्या है कि इनसाइड पार्ट ऑफ द गन बैरल थ्रू विच द प्रोजेक्टाइल ट्रैवल्स व्हेन फायर्ड. बैरल के अंदर का पार्ट कि थ्रू विच प्रोजेक्टाइल ट्रैवल्स व्हेन इट इज फायर्ड. Now the second part is breech. Breech is the area of the firearm that contains the rear end of the barrel where the cartridge is inserted. अब ये जो बैरल है उसके दो एंड होंगे, फ्रंट एंड एंड रियर एंड. तो रियर एंड का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे ब्रीच, और जहां पे कार्ट्रिज इंसर्ट होती है.
तो वेरियस पार्ट्स और कंपोनेंट्स होते हैं और उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है और इसके एग्जांपल्स भी है, इमेजेस है, सच एस बोल्ट की बोल्ट क्या होता है कि मैकेनिकल पार्ट ऑफ द फायरआर्म की जो सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल्स में पाया जाता है। फिर है ब्रीच, ब्रीच तो हमने देख लिया। फिर है ब्रीच ब्लॉक। तो ब्रीच ब्लॉक क्या है कि ब्रीच ब्लॉक इज द मूवेबल पार्ट of the firing system that seals the moment of firing, preventing gas from escape. Most modern small firearms uses a bolt. फिर है chamber. Chamber is the portion of a barrel or barrel extension which supports the cartridge case while it is in the firing position. ऐसे डिफरेंट कंपोनेंट्स है और इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो आप एक बार देख लीजिए। एंड कुछ इंपॉर्टेंट है सच एस ग्रिप। तो ग्रिप क्या है? ग्रिप इज द पोर्शन ऑफ हैंडगन दैट इज यूज टू होल्ड द फायर आर्म। ग्रिप क्या है कि पोर्शन ऑफ द फायर आर्म और विच इज मोस्टली हैंडगन कि जो फायर आर्म को होल्ड करने के लिए यूज होता है। फिर है हैमर। इट इज अ मेन पार्ट ऑफ द handgun. The hammer on a revolver is the part that strikes the firing pin or the cartridge primer directly. हैमर क्या करेगा कि जो स्ट्राइक करेगा फायरिंग पिन पे और द कार्ट्रिज प्राइमर डायरेक्टली, डिटोनेटिंग द प्राइमर विच डिस्चार्जेस द गन। फिर है मजल। तो मजल ऑफ अ गन इज द फ्रंट एंड ऑफ द बैरल वेयर द प्रोजेक्टाइल एग्जिट द फायर। मैंने क्या बोला कि ये जो बैरल है इसके दो एंड होते हैं, फ्रंट एंड रियर। जो रियर एंड है वहां पे है ब्रीच, एंड जो फ्रंट एंड है उसको हम बोलेंगे मजल, कि वहां से प्रोजेक्टाइल एग्जिट होता है फ्रॉम द फायर। फिर होता है ट्रिगर गार्ड कि जो एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। द ट्रिगर गार्ड इज अ पोर्शन ऑफ फायर आर्म दैट wraps around the trigger to provide the both protection and safety। फिर यहाँ पे एक राइफल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो पहले हम देखते हैं स्टॉक। तो स्टॉक क्या है? इट इज अ हैंडल ऑफ अ फायर आर्म। फिर आते हैं सेफ्टी मैकेनिज्म कि मैकेनिकल डिवाइस दैट ब्लॉक द ट्रिगर और हैमर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायरिंग। तो सेफ्टी क्या करेगा कि एक्सीडेंटल फायरिंग को रोक सके, इसके लिए ये मैकेनिज्म दी गई होती है। फिर आता है बोल्ट हैंडल। तो बोल्ट हैंडल इज अ हैंडल यूज टू ओपन अप बोल्ट एक्शन। तो ये बोल्ट एक्शन राइफल है। तो यहाँ पे एक बोल्ट आप देख सकते हो कि उसकी मदद से फायरिंग होती है। फिर है बोल्ट कि बोल्ट इज अ मूवेबल मेटल ब्लॉक दैट सील्स अ कार्ट्रिज इनटू द चेंबर ऑन सम एक्शंस। फिर है चेंबर कि चेंबर इज द बेस ऑफ द बैरल यूज टू होल्ड द कार्ट्रिज और शॉट सेल रेडी फॉर शूटिंग। चेंबर क्या करेगा कि जो कार्ट्रिज और शॉट सेल को होल्ड करेगा रेडी फॉर शूट। फिर है ट्रिगर। ट्रिगर इज अ स्मॉल लीवर दैट इज स्क्वीज्ड टू स्टार्ट द फायरिंग प्रोसेस। ट्रिगर एक डिवाइस है जिसको हम पुल करते हैं ताकि फायरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो। फिर है ट्रिगर गार्ड। तो ट्रिगर गार्ड इज अ पीस दैट सराउंड्स द ट्रिगर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग स्क्वीज और बम एक्सीडेंटली। ट्रिगर गार्ड एक सेफ्टी मैकेनिज्म है कि जो एक्सीडेंटल फायरिंग को प्रिवेंट करता है। और लास्ट पार्ट जो है वो है बट द पार्ट ऑफ द स्टॉक दैट यू होल्ड अगेंस्ट योर शोल्डर व्हेन शूटिंग। फिर है मैगजीन। तो मैगजीन इज अ कंटेनर ऑन अ रिपीटिंग फायरआर्म दैट होल्ड्स अम्यूनिशन बिफोर इट्स लोडेड इनटू द चेंबर। मैगजीन क्या है कि एक कंटेनर है कि जो अम्यूनिशन को स्टोर करता है बिफोर इट्स लोडेड इनटू द चेंबर एंड यूजुअली ट्यूब्स और बॉक्सेस अटैच टू द रिसीवर। फिर है फोर स्टॉक। तो फोर स्टॉक क्या है? फ्रंट पोर्शन ऑफ द स्टॉक एक्सटेंडेड अंडर द बैरल इन फ्रंट ऑफ द रिसीवर, यूजुअली हेल्ड बाय द नॉन ट्रिगर हैंड टू हेल्प सपोर्ट द फायर। बैरल तो हमने देखला कि जो लॉन्ग मेटल ट्यूब है थ्रू विच द प्रोजेक्टाइल ट्रेवल्स। मजल भी हमने देख लिया कि जो फ्रंट एंड ऑफ द बैरल है जहां से प्रोजेक्टाइल एग्जिट होता है। अब है साइट। साइट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर एमिंग यूजुअली बाय अलाइनिंग अ फ्रंट एंड रियर साइट। साइट एक ऐसा कंपोनेंट है कि जो एम करने के लिए यूज होता है फायर आर्म्स में।
अदर पार्ट्स भी है लाइक बोर, तो बोर बोर को मैंने बोला कि जो इनसाइड पार्ट ऑफ द फायर आर्म बैरल, तो उसको हम बोलेंगे बोर। ब्रिज तो रियर एंड ऑफ द बैरल। फायरिंग पिन, और फायरिंग पिन क्या है? अ पिन दैट स्ट्राइक द प्राइमर ऑफ द कार्ट्रिज कॉजिंग इग्निशन। फायरिंग पिन क्या है कि ऐसे पिन है कि जो प्राइमर ऑफ द कार्ट्रिज पे स्ट्राइक करेगी और उसकी वजह से इग्निशन होगा। देन द रिसीवर, रिसीवर इज अ मेटल हाउसिंग फॉर द वर्किंग पार्ट्स ऑफ द एक्शन। रिसीवर क्या है? मेटल हाउसिंग फॉर द वर्किंग पार्ट्स ऑफ द एक्शन। फिर है एक्सट्रैक्टर एंड इजेक्टर। तो दोनों में माइनर डिफरेंस है। एक्सट्रैक्टर क्या है? द मैकेनिज्म ऑन विच फायर आर्म्स दैट विड्रॉस अ कार्ट्रिज और कार्ट्रिज केस फ्रॉम द चेम्बर ऑफ फायर आर्म्स। एक्सट्रैक्टर क्या करता है कि विड्रॉस अ कार्ट्रिज और कार्ट्रिज केस फ्रॉम द चेम्बर ऑफ फायर आर्म्स। और इजेक्टर क्या करता है? इजेक्टर इज द मैकेनिज्म ऑन फायर आर्म विच इजेक्ट्स और एक्सपेल कार्ट्रिज और कार्ट्रिज केस फ्रॉम अ चेम्बर ऑफ फायर आर्म। एक्सट्रैक्टर क्या करता है? विड्रॉ करता है कार्ट्रिज और कार्ट्रिज केस को फ्रॉम द चेम्बर ऑफ फायर आर्म, व्हाइल इजेक्टर क्या करता है? इजेक्ट्स और एक्सपेल कार्ट्रिज और कार्ट्रिज केस फ्रॉम अ चेम्बर ऑफ फायर आर्म। हाँ, फिर आते हैं सीरियल नंबर पे कि जो फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ फायर आर्म्स के लिए यूज हो सकता है कि सीरियल नंबर। अ नंबर अप्लाइड टू फायर आर्म्स बाय मैन्युफैक्चरर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द फायर आर्म। सीरियल नंबर की जो हम फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ फायर आर्म्स में यूज कर सकते हैं। तो क्या है? अ नंबर अप्लाइड टू फायर आर्म्स बाय द मैन्युफैक्चरर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द फायर आर्म, कि जो फायर आर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है। फिर आते हैं हेड स्टैम्प। It is a numbers, letters, and or symbols stamped into the head of the cartridge case or short shell case to identify the manufacturer, caliber, gauge or give additional information. हेड स्टैम्प क्या है? कि नंबर्स, लेटर्स एंड और सिंबल्स की जो स्टैम्प किया जाता है हेड ऑफ द कार्ट्रिज केस और शॉर्ट सेल, कि ताकि हम उससे मैन्युफैक्चर, कैलिबर एंड गोज एंड अदर इंफॉर्मेशन को पता कर सकें। हाँ, तो यहाँ पे एक जनरल कंपोजिशन ऑफ सब मशीन गन दिया गया है कि यहाँ पे देख सकते हो रियर साइट है, फ्रंट साइट। साइट मतलब एम के लिए यूज किया जाता है। ये मैगजीन रिलीज, ये मैगजीन की जो स्टोर करता है अम्यूनिशन को। फिर है ट्रिगर, जो है मेन एक्शन मूवेबल पार्ट। और ये है बैरल, और ये बैरल में जो है मजल है, फ्रंट पार्ट ऑफ द बैरल। दिस इज द जनरल कंपोजिशन ऑफ राइफल। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इजेक्शन, यहाँ पे है इजेक्शन पोर्ट, मैगजीन है, ट्रिगर गार्ड है कि जो सेफ्टी मैकेनिज्म है, स्टॉक है कि जो सपोर्ट के लिए यूज होता है, और मजल है कि जहां से प्रोजेक्टाइल फ्रॉम, यहाँ से प्रोजेक्टाइल एग्जिट होता है। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स है आप एक बार देख लीजिएगा और इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये सपोज कि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है फायर आर्म के, उसको आप सीरीज में सीक्वेंस में सेट कीजिए, फ्रॉम स्टोक टू मजल एंड, या तो फिर मजल टू स्टोक है। तो हमने पार्ट्स ऑफ फायर आर्म्स देख लिए हैं और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ देख सकते हो, या तो फिर आप ये ड्राइव की लिंक मैंने यहाँ पे ऐड किया, उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर आर्म्स। तो फायर आर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज बेस्ड ऑन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज बोर कैरेक्टरिस्टिक्स, लोडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्शन ऑफ द फायर आर्म्स और यूजेस एक्सेट्रा। तो पहले हम देखते हैं बोर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो बोर के हिसाब से दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं फायर आर्म्स को, या तो स्मूथ बोर या तो फिर राइफल बोर। और ये क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। फिर लोडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, तो लोडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से तीन टाइप्स के फायर आर्म्स हो सकते हैं: मजल लोडिंग, ब्रीच लोडिंग एंड मैगजीन लोडिंग। मजल लोडिंग में क्या होगा कि मजल से प्रोजेक्टाइल लोड करते हैं, ब्रीच लोडिंग में ब्रीच फेस से
प्रोजेक्टाइल और अम्यूनिशन लोड किया जा सकता है, और मैगजीन में मैगजीन लोड करते हैं जो अम्यूनिशन कंटेनर है। फिर होता है एक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मेनली 6 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज सिंगल एक्शन, सेकंड इज डबल एक्शन, देन थर्ड वन इज सेमी ऑटोमेटिक firearm, fourth is automatic firearm, then lever action firearm and bolt action firearm. देन फायरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देखते हैं, तो उसमें दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल शॉट एंड रिपीटेड शॉट। तो सिंगल शॉट क्या करेगा, एक सिंगल शॉट फायर करेगा, और रिपीट शॉट मल्टीपल शॉट्स फायर करेगा। फिर हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से फायर आर्म्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो फर्स्ट वन इज हैंड गन, सेकंड इज शोल्डर गन, द थर्ड वन इज आर्म गन, एंड द फोर्थ वन इज स्टैंड गन। स्टैंड गन मतलब कि जिसको यूज करने के लिए एक स्टैंड की जरूरत होती है। नाउ बेस्ड ऑन द यूजेस, तो यूजेस के हिसाब से 3 कैटेगरी दी गई। स्पोर्टिंग की जो स्पोर्ट्स में यूज करते हैं, फिर सर्विस, तो सच एस आर्मी, पुलिस, ऐसी एजेंसीज जो यूज करती है फायर आर्म्स, उसको सर्विस कैटेगरी में डाला गया है। फिर है सेल्फ डिफेंस की, जो सेल्फ डिफेंस में यूज करते हैं पिस्तौल, रिवॉल्वर एक्सेट्रा। एंड द लास्ट वन इज इम्प्रोवाइज फायर। इम्प्रोवाइज फायर आर्म्स ऑल्सो नोन एज कंट्री मेड फायर आर्म्स, की जो इलीगल मैन्युफैक्चर होता है और विच हैज नो सेफ्टी मैकेनिज्म एक्सेट्रा। तो पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें हमने बोला था कि दो टाइप्स के होते हैं, स्मूथ बोर एंड ड्राई बोर। तो स्मूथ बोर इज अ फायर आर्म इन विच द बोर और इनसाइड द बैरल इज परफेक्टली स्मूथ फ्रॉम एंड टू एंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ एकदम स्मूथ है, यहाँ पे कोई कुछ भी लैंड्स और ग्रुप प्रेजेंट्स नहीं है। द क्रॉस सेक्शन एट एनी पॉइंट इन द बैरल विल गिव अ परफेक्ट सर्कल फॉर द बोर। ये परफेक्ट सर्कल है फॉर द बोर। और स्मूथ बोर बैरल कैसा है कि परफेक्ट सर्कल, और यहाँ से प्रोजेक्टाइल इज शॉट स्ट्रेट आउट। फिर है राइफल बोर। तो राइफल बोर में क्या होता है कि लैंड्स एंड ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, और प्रोजेक्टाइल इज शॉट आउट इन अ स्पाइरलिंग मोशन, और इसको बोलते हैं गायरेटरी मोशन। तो राइफल बोर की इन all rifled arms, the bore is cut longitudinally with the number of grooves. These grooves are parallel one to the other but are cut with a twist or spiral from breech to muzzle. These grooves are parallel one to the other but are cut with a twist or spiral from breech to the muzzle. Throughout the barrel, ऐसे lengths and grooves present होते हैं राइफल्ड बोर फायरआर्म में, and the spiral grooves in the barrel to impart spin to the projectile giving it stability in the flight. और spiral grooves क्या है कि वो spin provide करेगा प्रोजेक्टाइल को, एंड जो प्रोजेक्टाइल की स्टेबिलिटी बढ़ाता है थ्रू दी थ्रू आउट दी फ्लाइट। फिर है लोडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो लोडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमने 3 देखे थे, मजल लोडिंग, मैगजीन लोडिंग एंड ब्रीच फेस लोडिंग। तो मजल लोडिंग इज अ वेपन इन विच प्रोपेलेंट और बॉल आर लोडेड फ्रॉम द मजल। तो हमने ये बोला था कि जो एक बैरल है उसके दो एंड होते हैं, फ्रंट एंड रियर। तो फ्रंट एंड पे होता है मजल एंड रियर पे होता है ब्रीच फेस। तो अगर मैं मजल एंड से लोड करूंगा अपने प्रोजेक्टाइल और अम्यूनिशन को, तो उसको हम बोलते हैं मजल लोडिंग फायर। फिर है ब्रीच लोडिंग। तो यहाँ पे मैंने बोला कि मैं यहाँ पे मैंने बोला कि बैरल के दो एंड होते हैं, फ्रंट एंड रियर एंड, और रियर एंड को बोलेंगे ब्रीच फेस। अगर मैं ब्रीच फेस से लोड करता हूँ उसको हम बोलेंगे ब्रीच लोडिंग। तो ब्रीच लोडिंग गन्स आर टुडे इन जनरल यूज। This is the name given to all firearms in which by special mechanism the barrel can be opened and loaded from the end nearest to the butt. After introducing the charges, the weapon is closed. तो यहाँ पे एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है कि जो बैरल को ओपन करने में हेल्प करती है, और वहां से हम
अपने अम्यूनिशन को लोड कर सकते हैं और अम्यूनिशन लोड करने के बाद हम उसको क्लोज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज मैगजीन लोडिंग। तो उसमें क्या होता है, इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू लोड योर मैगजीन बाय हैंड। मैगजीन एक ऐसा कंटेनर है कि जहाँ पे हम अम्यूनिशन को स्टोर कर सकते हैं। दिस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग इफ यू आर इन द जोन एट द रेंज एंड हैव टू स्टॉप टू रिलोड। अगर हम मैगजीन हाथ से लोड करेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है, तो वो एक टीडियस काम है। फ्रस्ट्रेटिंग इफ यू आर इन द जोन एट द रेंज एंड हैव टू स्टॉप टू रिलोड। अब ऐसा रीजन, एक ऐसा जोन है कि जहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली फायरिंग करना है और आपको स्टॉप नहीं करना है, तो उस टाइम पे ये फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। सो इवन इफ यू हैव एक्स्ट्रा मैगजीन्स अवेलेबल, यू विल स्टिल नीड टू टेक द टाइम एट सम पॉइंट टू रीलोड देम। अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा मैगजीन है कि जो ऑलरेडी लोडेड है, पर फिर भी उसको आपको फायर आर्म में कनेक्ट करने के लिए टाइम लगेगा। सो अ मैगजीन लोडर मेक्स दिस प्रोसेस फास्टर एंड सेव्स योर टाइम। तो उसके लिए आता है मैगजीन लोडर कि जो मैगजीन लोड करने में हेल्प करता है, विच इज फास्टर एंड सेव योर टाइम। फिर है एक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सिंगल एक्शन में क्या है, हैमर मस्ट बी कॉक्ड बाय हैंड आफ्टर ईच शॉट। क्या है कि जो हैमर को कॉक करना ही पड़ता है आफ्टर ईच शॉट, एंड द वेपन इज देन फायर इन द यूजुअली वे बाय प्रेसिंग द ट्रिगर। हैमर को पहले कॉक करना है, फिर उसके बाद मुझे ट्रिगर पुल करना है, उसके बाद फायरिंग होगा। एक बार फायरिंग हो गया, उसके बाद फिर से मुझे हैमर को कॉक करना है बाय हैंड, फिर से ट्रिगर पुल करो और उसके बाद सेकंड शॉट फायर हो। एंड सेकंड एक्शन इज डबल एक्शन। तो डबल एक्शन में क्या, हैमर कैन बी कॉक बाय हैंड बट इट कैन ऑल्सो बी कॉक बाय प्रोलॉन्ग पुल ऑन द ट्रिगर। तो ये रिपीटेड शॉट में हेल्प करता है। क्या है, हैमर कैन बी कॉक बाय हैंड बट इट कैन ऑल्सो बी कॉक बाय प्रोलॉन्ग पुल ऑन द ट्रिगर। तो ये है डबल एक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिंगल एक्शन में क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिंगल एक्शन में क्या है कि पहले हैमर को कॉक करो, उसके बाद ट्रिगर को पुल करो और इसके बाद वो प्रोजेक्टाइल फायर होगा। और यहाँ पे क्या है कि प्रोलॉन्ग पुल करो ट्रिगर को, तो प्रोजेक्टाइल फायर होगा। फिर हम देखते हैं सेमी ऑटोमेटिक। तो सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल्स मोस्टली अवेलेबल होती है। सेमी ऑटोमेटिक वेपन विच यूजेस अ पोर्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ डिस्चार्ज टू इजेक्ट द एम्प्टी कार्ट्रिज केस, reload a fresh round into the chamber and cock the action ready for the firing. In semi-automatic, all the actions except firing, such as loading and reloading, extraction and ejections are carried out automatically. सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है, ऑल एक्शंस एक्सेप्ट द फायरिंग, फायरिंग के अलावा सभी एक्शन सच एज कार्ट्रिज लोड करना, एक्सट्रैक्ट करना, इजेक्ट करना, ये सब ऑटोमेटिक होती है। मैनुअल वन इज व्हाट, फायरिंग, उसके लिए आपको ट्रिगर पुल करना पड़ेगा। तो ये है सेमी ऑटोमेटिक मैकेनिज्म और सेमी ऑटोमेटिक एक्शन, कि जिसमें फायरिंग के अलावा सब कुछ मैकेनिज्म ऑटोमेटिक होगा, सिर्फ फायरिंग हमें मैन्युअली करना पड़ता है। फिर है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक इज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी फॉर अ वेपन विच कंटिन्यूज टू फायर अंटिल द ट्रिगर इज रिलीज। ट्रिगर मैंने पुल किया, जब तक मैं ट्रिगर पुल करूंगा तब तक वो कंटिन्यूअसली शॉट करता रहेगा, और जब मैंने ट्रिगर को रिलीज कर दिया वो फायर स्टॉप कर देगा। यहाँ पे आप एनिमेशन में देख सकते हो कि यहाँ पे इसने ट्रिगर पुल किया है तो कंटिन्यूअसली फायर होते जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेमी ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है कि इसने 3 बार प्रेस किया तो वो फायर आर्म, वो प्रोजेक्टाइल मूव हुई। One round. Release. One round. Release. As you can see, it's firing once. I can hold it down and it won't fire again till I let it off and pull it again. Now we'll do auto. अब ये ऑटोमेटिक मोड, ऑटोमेटिक फायर यूज करता है। तो यहाँ पे आप देखो कि उसने ट्रिगर पुल किया है और कंटिन्यूअसली फायर हो रहा है। फिर आता है लीवर एक्शन।
The lever is fixed below the trigger and act as a trigger guard in a normal position. When lever pushed forward, a rod is pulled backward. It extracts the fire cartridge and cocks the rifle. Simultaneously, the carrier block is pushed upward, which carries along a live cartridge. When the lever is brought to its normal position, the rod place takes its normal position and the rifle is ready for the fire. When the lever is brought to its normal position, the rod places takes its normal position and the rifle is ready for the fire. These guns are mainly used by the hunters. लीवर एक्शन मैकेनिज्म वाले जो फायर आर्म्स है वो मेनली यूज करते हैं हंटर्स। तो यहाँ पे फिगर्स में, तो यहाँ पे इमेज में दिखा गया है, ये है लीवर कि जो ट्रिगर के पीछे होता है। फिर है बोल्ट एक्शन। तो बोल्ट एक्शन मैकेनिज्म आर फाउंड इन .303 राइफल्स which used by the Indian police forces. So here loading and reloading, extraction and ejections are done with the help and a bolt with a knob. Loading, reloading, extraction and ejection किसकी हेल्प से होता है? बोल्ट। In the forward normal position, the belt is locked with the knob turned to one side. In this position, it seals the chamber also. The firearm is cocked in this position unless it has been already fired. The firing pin assembly is inside the belt. When the trigger is pressed, the firing pin flies forward through a hole in the bolt ahead strike the cartridge. And after firing, we have to pull the bolt backward. फायर हो गया, उसके बाद मुझे बोल्ट को बैकवर्ड पुल करना है, एंड एट दैट टाइम द फायर्ड कार्ट्रिज केस इज आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द चेंबर. देन द कार्ट्रिज केस स्ट्राइक्स अगेंस्ट एन इजेक्टर डिवाइस एंड थ्रोन इट आउट विद सफिशिएंट फोर्स. क्या क्या होगा कि फायरिंग हो गया, उसके बाद मुझे बोल्ट को पुल करना है बैकवर्ड में. तो एट दैट टाइम fired cartridge case is also extracted from the chamber, and then the cartridge case strikes against an ejector and thrown it out with the sufficient force. तो ये है बोल्ट. फायरिंग के बाद मुझे यहाँ पे बैकवर्ड पुल करना, तो ये जो कार्ट्रिज केस है वो एक्सट्रेट आउट होगा. फिर फायरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से दो टाइप्स दिए गए हैं, सिंगल शॉट एंड रिपीट शॉट. तो इन सिंगल शॉट वेपन्स लाइक .22 pistol or derringer, the barrel can be hinged to frame, allowing the barrel to be dropped down for loading and unloading, or can have some form of breech block which either swing out, pulls back or slide down to expose the breech end of the barrel. सिंगल शॉट में क्या कि वो सिंगल टाइम फायर करेगा, उसके बाद मुझे हैमर को कॉक करना पड़ेगा या तो फिर मुझे फिर से रीलोड करना पड़ेगा एक्सेट्रा. और रिपीट शॉट में क्या है कि इन रिपीट शॉट वेपन्स अम्यूनिशंस आर ऑटोमेटिकली लोडेड सच एज सेमी ऑटोमेटिक फायरआर्म्स और मशीन गन. It is. After firing, the ejection of cartridge case is automatically done. रिपीट शॉट में अम्यूनिशंस आर ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं, देन इजेक्शन ऑफ कार्ट्रिज केस इज ऑटोमेटिकली डन. फिर देखते हैं हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से. तो उसमें चार टाइप्स होते हैं, हैंड गन, आर्म गन, शोल्डर गन एंड स्टैंड गन. तो हैंड गन मतलब कि रिवॉल्वर, पिस्तौल. आर्म गन की जो आर्म का यूज करती है फायर करने के लिए, तो आर्म पिस्तौल. फिर है शोल्डर गन की जो शोल्डर का सपोर्ट लेती है टू फायर आर्म, टू फायर द प्रोजेक्टाइल. एंड द लास्ट वन इज स्टैंड गन की जो यूज करने के लिए हमें स्टैंड की जरूरत पड़ती है. एग्जांपल मशीन गन, कि मशीन गन को ऑपरेट करने के लिए हमें स्टैंड की जरूरत पड़ती है, हम शोल्डर, आर्म और हैंड से उसको यूज नहीं कर सकते. बेस्ड ऑन यूजेस, तो यूजेस के हिसाब से हमने तीन टाइप्स देखे थे, स्पोर्टिंग, सर्विस एंड सेल्फ डिफेंस. स्पोर्टिंग मतलब कि स्पोर्ट्स में यूज करते हैं वो. सर्विस मीन्स की जो आर्मी एंड पुलिस यूज करती है वो. तो इंडिया की सर्विस राइफल है इंसास. फिर सेल्फ डिफेंस, की सेल्फ डिफेंस में लोग जो यूज करते हैं रिवॉल्वर, पिस्तौल, इट इज. फिर है इम्प्रोवाइज्ड फायर आर्म, जो एक लास्ट कैटेगरी ऑफ द फायर आर्म है. तो इम्प्रोवाइज्ड फायर आर्म इज अ फायर आर्म मैन्युफैक्चर्ड बाय समवन
हु इज नॉट अ रेगुलर मेकर ऑफ द फायर आर्म, कि जो रेगुलर मेकर नहीं है फायर आर्म का, सच एज अ फायर आर्म मैन्युफैक्चर और अ गन स्मिथ। किसने मैन्युफैक्चर की है? कि जो फायर आर्म मैन्युफैक्चर और अ गन स्मिथ नहीं है, and is typically constructed by adapting existing materials to the purpose. And improvised firearms are commonly used tools by criminals and insurgents and therefore often associated with the such groups. Mostly use करते हैं क्रिमिनल्स लोग। इसमें कोई सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं होती। डेंजर टू यूज। सो थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में हमने देखा फायर आर्म, फिर पार्ट्स ऑफ द फायर आर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर आर्म्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राइफलिंग। उसमें हम देखेंगे राइफलिंग क्या है, कौन सी दो मेथड्स है, एडवांटेजेस क्या है, एक्सेट्रा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।